Hello, good morning all. Today we will discuss about the interest and attention, the psychology of interest, attention and learning. Psychology of interest, attention and learning. The opening question compares watching a 2 hour movie with struggling to focus on a 20-minute lecture. Let us begin with a simple question: why can a student watch a 2 hour movie without getting bored, but struggle to concentrate even on a 20-minute lecture in classroom? The answer takes us into the psychology of interest and attention. Interest plays an important role in directing our attention. When something interests us, we naturally pay more attention to it, and attention is an important gateway to learning. अगर एक सरल प्रश्न से शुरू करें, एक विद्यार्थी बिना बोर हुए 2 घंटे की फिल्म देख सकता है, लेकिन 20 मिनट के लेक्चर पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। किसी भी क्लासरूम में अक्सर टीचर द्वारा पढ़ाए जाने के दौरान एक बोर्डम उत्पन्न हो जाता है और बच्चे बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। 10 मिनट के बाद ही अक्सर देखा गया है कि बच्चे बोर होने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं या फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं। उनका फोकस कम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हमें इंटरेस्ट और अटेंशन की साइकोलॉजी तक ले जाता है। जब किसी विषय में हमारी रुचि होती है या इंटरेस्ट होता है, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाता है और लर्निंग के लिए अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। So first, let us understand what exactly we mean by interest. Interest means a feeling of curiosity, linking or liking or involvement toward a particular subject or activity। जिस काम को हम पूरी उत्सुकता से, पूरे समर्पण भाव से और पूरी तरह से मोटिवेट होकर करते हैं, या जिस काम को हम फ्री में भी कर सकते हैं, जिस काम में हमें आनंद प्राप्त होता है, उस तरह की मानसिक प्रक्रिया को इंटरेस्ट या अभिरुचि कहते हैं। We can broadly understand interest in two ways. First one is individual interest, and second one is situational interest. Individual interest means this is relatively lasting personal passion for a particular topic. For example, a student may have a strong and continuing interest in psychology, and another one is situational interest. This is created or simulated by the learning environment. For example, an interesting story, a demonstration, a surprising question, or an engaging activity can suddenly make a student interested in a topic. तो अभिरुचि या इंटरेस्ट का अर्थ है किसी एक्टिविटी के प्रति जिज्ञासा या इन्वॉल्वमेंट की भावना प्रकट होना। ये दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला, इंडिविजुअल व्यक्तिगत अभिरुचि जो जन्म से हमारे साथ होती है, और दूसरा सिचुएशनल इंटरेस्ट, मतलब जो परिस्थिति के हिसाब से या इन्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट होता है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो हमारा इनबॉर्न होता है और हम जन्म से उसको साथ लेके चलते हैं और उसी तरह के कार्यों को करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। और सिचुएशनल इंटरेस्ट, जैसे कोई टीचर अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी बताए या कोई डिमोन्स्ट्रेट करे या
कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जिससे क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, या इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे कि हमारी अभिरुचि या इंटरेस्ट पैदा हो जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, तो इस प्रकार के इंटरेस्ट को सिचुएशनल इंटरेस्ट कहते हैं। ये डिपेंड करता है टीचर की क्लासरूम टीचिंग पे। So therefore, even if a student doesn't initially have an interest in a subject, a teacher can sometimes create situational interest. What is attention? Attention as focusing mental resources on specific information while filtering directions with the classroom noise example. Now, interest alone is not enough. Interest needs to translate into attention. Attention means focusing our mental resources on specific information while filtering our distractions. Imagine a student sitting in a classroom. There may be noise outside, students talking or other distractions, but the student continues listening carefully to the teacher. That student is paying attention. So, attention is essentially the process of selecting what deserves our mental focus. अब केवल इंटरेस्ट होना पर्याप्त नहीं है, इंटरेस्ट को अटेंशन में बदलना आवश्यक है। अटेंशन का अर्थ है किसी विशेष इंफॉर्मेशन पर अपने मानसिक संसाधनों को केंद्रित करना और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना या इग्नोर करना। उदाहरण के लिए क्लासरूम के बाहर नॉइज़ आ रही है, या मेरे बगल में बैठे हुए छात्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट टीचर की बात ध्यान से सुन रहा है। इसका अर्थ है कि वह स्टूडेंट ध्यान दे रहा है, वो फोकस्ड है। But attention doesn't depend only on the student. Many internal and external factors influence it. What shapes attention? Attention को कैसे सेव करें? There are two broad groups of factors, internal and external. Internal factors include interest and motivation, emotional state, prior knowledge, physical condition, and the student's needs and goals. External factors include the teacher's presentation style, visuals, novelty, sound and movement, classroom environment, and a variety in teaching methods. This tells us something important. Attention is not simply a student's responsibility. This learning environment and the teacher's approach can also influence attention. इसका मतलब स्टूडेंट का अटेंशन किन फैक्टर से प्रभावित होता है? एक आंतरिक फैक्टर है और एक बाह्य फैक्टर है। तो जो आंतरिक फैक्टर है उसमें इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, इमोशनल स्टेट है। इमोशनल स्टेट का मतलब हम कौन सी संवेगात्मक अवस्था में हैं। हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं, हम फियर में हैं, हम एंजाइटी में हैं, या हम एंगर में हैं, या डिप्रेशन में हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, अर्थात हम किस इमोशन से गुजर रहे हैं। दूसरा, प्रायर नॉलेज, मतलब उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं या बिल्कुल अननोन है, या फिजिकल कंडीशन कैसी है हमारी, क्या हम स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, या जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी गोल्स हैं, वो फुलफिल है। तभी एक इन्वायरमेंट बन सकता है जो इंटरनल फैक्टर्स में आता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में टीचर का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या वो नई नई विधियों के द्वारा क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, नए विजुअल्स से पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने में नोवेल्टी है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका वॉइस मॉड्यूलेशन है वो अच्छा है, उनका क्लासरूम मूवमेंट कैसा है, क्या वो क्लासरूम में पढ़ाने से पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अगर ये सब करते हैं तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं जो टीचिंग को
टीचिंग लर्निंग को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, अटेंशन केवल स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीचर और लर्निंग इन्वायरमेंट भी अटेंशन को प्रभावित करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Learning chain. Learning chain means interest, then attention, then processing, then learning, and finally retention. Interest leads to attention, attention supports processing, processing leads to learning, and repetition helps building retention. Think of it as a chain. If the first link are weak, the later links can also become difficult. Interest opens the door. Attention keeps the learner engaged. Processing creates understanding, and repetition helps us retain what we have learned. अब हम लर्निंग चेन पर आते हैं, जो इस लेक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले अभिरुचि, फिर हमारा अवधान, फिर हमारी प्रक्रिया, फिर हमारा अधिगम और लास्ट में रिटेंशन मतलब अवरोध। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की प्रोसेस से गुजर के ही जो है हम जिस नॉलेज को एक्वायर करते हैं उसको एक लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकते हैं, जिसको रिटेंशन कहते हैं। तो इंटरेस्ट लर्निंग का द्वार खोलता है, अटेंशन लर्निंग को लर्निंग प्रोसेस में बनाए रखता है, प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है और रेपिटेशन रिटेंशन को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए लर्निंग को केवल इंफॉर्मेशन देने की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इंटरेस्ट ओपन्स द डोर, अटेंशन कीप्स द लर्नर इनसाइड। इंटरेस्ट लर्निंग का द्वार खोलता है और अटेंशन लर्नर को उस लर्निंग प्रोसेस में बनाए रखता है। हाउ टीचर्स कैन स्पार्क इंटरेस्ट एंड अटेंशन। द टीचर शुड try to tell a story, है ना, in between the classroom lecture. Teacher should ask so many questions for creating curiosity and attention and interest, है ना। टीचर शुड यूज विजुअल्स, वीडियोस, presentations, and teacher should demonstrative active tasks, or teacher should involve all the students through activity. Now, the most practical question, what can teacher actually do? First, tell stories related to real life experiences or real life examples, and case studies can make abstract concept meaningful. Second, ask the question. A good question before teaching can create curiosity and interest. Third, use visuals, images, videos, demonstrations can make the learning impactful, experiencing, and engaging. And active tasks. Instead of continuously explaining, give students short activities between explanations. This basic idea is simple. Don't just deliver information, create an experience around the information. अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि टीचर वास्तव में क्या कर सकता है। स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चनिंग, विजुअल्स और वीडियोस, demonstrate visuals and videos, and active task or activity. Central message: a teacher can't force attention but can design experience that make attention easier, followed by the memory song question. Let us conclude with the central message. A teacher can't force attention but can design experience that make attention effortless. We can't simply tell students pay attention. Instead, we should think about how we can make the learning experience and environment interesting,
meaningful and engaging. For example, instead of saying, "Today we will study memory," we can ask, "Why do you remember a song from years ago but forget last night's lesson?" Suddenly, the student wants to know the answer, and that curiosity can become the starting point of learning. टीचर अटेंशन को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है जिससे अटेंशन नेचुरली आए, जिससे इंटरेस्ट नेचुरली आए। और हम केवल यह नहीं कह सकते कि ध्यान दो, हमें लर्निंग एक्सपीरियंस को, इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होगा, इसको इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और इंगेजिंग बनाना होगा। उदाहरण के लिए, आज हम मेमोरी, स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। रादर देन हमको ये कहना चाहिए कि आपको कोई सालों पुराना सॉन्ग याद रहता है, लेकिन कल रात पढ़ा हुआ लेसन क्यों भूल जाते हैं। अब स्टूडेंट के मन में क्यूरोसिटी पैदा होती है, और यही क्यूरोसिटी लर्निंग की शुरुआत बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का हमारा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा, उसी में हमारा इंटेंस अटेंशन जाता है, और उसी में हमारी लर्निंग फास्ट होती है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए कि जो सब्जी वाले हैं, जो चाय वाले हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, उस प्रोसेस को पूरी तरह जानते हैं। कैसे? जबकि वो ABCD भी नहीं जानते, 1 2 3 भी नहीं जानते। इंटरेस्ट की वजह से, उनको बहुत इंटरेस्ट है उसमें, और जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट होता है उसमें लर्निंग फास्ट होती है, उसमें अचीवमेंट हाई लेवल का होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। In the next lecture we will again discuss about a next topic. Thank you very much.